because cybersecurity cybersecurity has become a critical need in today's world. Cybersecurity is essential in today's digital world, where we even a single breach can compromise our personal data, finances, and even national security. Just one cybercrime can create serious issues if someone gains access to sensitive information and they might disclose private data, steal money through stolen password, and etc. etc. So to further delve into this, we are having with us Mr. Ehsan Qureshi, lecturer, cybersecurity, Air University, Islamabad. Thank you, sir, for having your precious time, and we look forward to your valuable thoughts. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Um, I'm unable to share my screen, please. Okay, let me send you. Sir, before we officially begin, I just wanted to share a quick note with the participants. In case if you have any question, please just raise your hands and keep your mics muted to maintain the decorum of the webinar. Thank you. PPT रिसीव होगी सर आपको? Or if you can, please make me the host so I can share the screen. Sir, kindly send me, then I will share from my side. जी You जी वो just अटैच हो रही हैं आई थिंक. यस अटैच हो रही हैं, आपको सेंड हो रही हैं. आई थिंक इंटरनेट काफी इशू है साइट पे, स्लो. सर आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं. जी जी मैं आपको भेज रहा हूँ. ये आई थिंक व्हाट्सएप पे काफी स्लो अटैच हो रही है. मैं इसको काफी थोड़ी सी हैवी प्रेजेंटेशन है क्योंकि इसमें काफी इमेजेस यूज हुए थे. मैं इसको पीडीएफ में भेजता हूँ आपको. सर आपने मुझे सेंड किया है या आप खुद कर रहे हैं? आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे अटैच हो रही है काइंडली. अच्छा. जी जी. हम्म. असल में ये चीज आइडिया नहीं थी कि ये लैग आएगा. है ना, जब हम बात करते हैं साइबर, जी सर. जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके जो मेन एलिमेंट्स है उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द अवेलेबिलिटी, राइट. वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, वन इज अवेलेबिलिटी एंड वन इज द इंटेग्रिटी. थैंक यू, आपने मुझे होस्ट बना दिया. नाउ आई थिंक आई कैन शेयर माय साइट्स. लेट मी.
को होस्ट बना दिया आपने मुझे? जी सर, आपका होस्ट बना लिया हमने। अच्छा, को होस्ट नहीं, को होस्ट बना ठीक लिया। है, अभी मुझे yes, thank you so much. Now I can share the screen. Thank you. Let me stop that from sharing. Right. So screen is shared, right? यस सर, कैरी ऑन प्लीज। Yes. Okay. Thank you. So चले जो फॉर्मल थैंक यू वगैरह का टाइम था वो तो आई थिंक हमारा स्किप हो गया, तो आई जस्ट क्विकली आई एम humbled and thankful to you for providing me this opportunity, and I'm grateful for Mr. Shafqat Rasool, President of International Institute of Regional and International Studies, for organizing this webinar. Uh, Kindly, if you please mute your mics and unmute yourself when you have any question. Thank you. So, and thank you for a good introduction of me. Thank you. So, coming toward the topic, cyber security, as you know, that in today's interconnected world, where cyber security is no longer just an IT concern, it has become a strategic and organizational imperative. Can you please mute the Uh, participants? please keep your mics muted and keep the decorum of the webinar. All right. So, cybersecurity from individuals and businesses to governments and all the critical infrastructure, every entity faces an ever evolving landscape of digital threats. Technology alone cannot secure our systems. We truly need is a cybersecurity mindset, a proactive, analytical, and a vigilant approach to identifying, assessing, and mitigating those risks before they materialize. So during this session, I will try my level best to share that and I can cultivate that mindset and emphasize not only on the technical skills required, but also the behavioral and strategic thinking that separates reactive responses from proactive security leadership. So, cybersecurity is a shared responsibility. It is not just the responsibility of your IT department, right? It begins with the awareness, informed decision making, and a disciplined approach to digital safety. So, together, let us embark on this journey of strengthening our understanding and enhancing our resilience and fostering a culture where security is not an afterthought but a fundamental principle. So, whether you are completely new to cybersecurity, looking to strengthen your digital awareness, this webinar is designed um, to make essential cybersecurity concepts uh, very simple, practical, and relevant for everyday use. And in this session, we will explore how to protect our personal and professional digital life, our understanding common cyber threats, and apply the basic security principles that everyone should know. So I will look forward to an engaging and interactive learning with all of you, and let's get started with our presentation. So this is the sequence of today's agenda. Screen is shifting or not? Yes, sir, it's Right, visible. right. Okay, fine. So this is all the points we will discuss about. The most important thing is information. Information is the most valuable asset, and our reliance on information systems exposes us to a complex and evolving cyber threat landscape, from malware and ransomware to social engineering threats.
persistent threats are unpredictable. Understanding these threats is the first step in developing a proactive cybersecurity mindset. Then you have to familiarize yourself with the basic cybersecurity terms that will help you to understand what is the physical security, what is the traditional security mindset, and what is the cybersecurity mindset, and why the cybersecurity is as important as our physical security. So protecting sensitive data, personal information, financial or organizational data that requires awareness of those threat sources, right? And simple habits like strong passwords, multi-factor authentication, and careful management of the information system is the first line of defense, right? So let's talk about what is information and information system. In cybersecurity world, we say data is the new oil. आप जानते हैं कि डाटा या ऑयल के पीछे सारी जो है ना वो दुनिया में जंग लगी हुई है। सऊदी अरब को देख लें, कतर को देख लें, या ठीक है, या जहां पे भी आपके नेचुरल सोर्सेज आते हैं वहां पर वो कंट्री जो है वो टारगेट कंट्री होता है, क्योंकि उनको वो वसाइल चाहिए होते हैं। तो अगर आप उसको रिलेट करें इस साइबर वर्ल्ड के साथ, तो डाटा सारा ऑयल है। Data is important. Data is everything. If you have data, you can do anything with that data, right? Then data basically it is the raw fact and figures. Okay. Then when you process that data, you come up with some information, and based on the information and knowledge, you take some decisions for the future that comes with your wisdom, right? So data security, information security is the critical aspect of cyber security. Basically, you have to protect the data. And where is the data? Where that data is residing? That data is residing in your information systems. एंड जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने एक सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूजर कैसे बनना है, हमने सिक्योर वे में इंटरनेट कैसे यूज करना है, हमने सिक्योर वे में ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, हमने सिक्योर वे में मोबाइल को कैसे यूज करना है, तब तक हम साइबर सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी है, नॉलेज। नॉलेज आपके माइंड में है। नॉलेज हर उस चीज के बारे में जो आपने अपने माइंड से क्रिएट की है, राइट? आपका इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर देयर। वो लॉज है बाकायदा जो आपके आईपीस को प्रोटेक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ द डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आपका आइडिया चोरी हो गया है, उसने प्रोडक्ट बना लिया आपके आइडिया के बेस पे, तो वो अब कैसे होगा? ठीक है, तो जब तक वो आइडिया एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहा, उसकी तो राइट्स प्रिजर्व नहीं की जा सकते। ठीक है, बहरहाल तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग, हमें समझना पड़ेगा कि डाटा हमारा क्या क्या चीजें हमारी डाटा होती हैं, क्या क्या चीजें हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, हम नॉलेज किस चीज को कहते हैं। ठीक है, और अगर आपका डाटा लॉस हो जाए और डाटा से आप इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोसेस करके अचीव कर ली थी, तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंफॉर्मेशन से वापस डाटा में आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? तो डाटा इज द न्यू ऑयल। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन? हम ये क्यों बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि जब हमें इंफॉर्मेशन की वैल्यू का पता होगा, तब जाकर हम उसकी सिक्योरिटी का एहसास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बड़ा कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी जेब में अगर 10 रुपए पड़े, तो आपके लिए शायद वो 10 रुपए की वैल्यू बहुत कम होगी, आप उसका उतना ही कम ख्याल रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी पॉकेट में अमाउंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपने 50,000 रख लिया, आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, आपने जेब में 2 लाख रुपए रख लिए कैश, तो आप और ज्यादा कॉन्शियस होंगे, आप उसको फिर बैग में रखेंगे, आपकी कोशिश होगी कि किसी को पता ना चले कि आप कुछ वर्थफुल रख रहे हैं अपने साथ, राइट? सो बिकॉज you value that information, you value that particular type of data, you value your assets, and the cyber security की जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है किसी अनइंटेंशनल थ्रेट से, किसी भी हार्म से, राइट? सो इंफॉर्मेशन की जो वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हमें ये पता है, तो फिर हम इससे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात समझ सकेंगे। पहली चीज आ जाती है इसमें एक्यूरेसी। अब ये जो जितने भी हम यहाँ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ये अब आगे जाके देखेंगे कि जब हम एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे, आपको आइडिया होगा कि यार ये तो वो बेसिक बातें थी जो साइबर से हटके थी, लेकिन इन्हीं चीजों को ही तो हम प्रोटेक्ट करने चाह रहे हैं, और यही चीजें आपकी देखें। साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग एल्स देन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, राइट? आपके कंप्यूटर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं,
अब साइबर सिक्योरिटी कोई बाहर के प्लेनेट की चीज नहीं है, आपने अपने उसी सिस्टम को सिक्योर करना है जो आप यूज कर रहे हैं, और वो उसी में से ही है। आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आपने एक वेबसाइट डेवलप की, वो आपने बेसिक कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बना लिया। नाउ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी की? उसी आईटी प्रोफेशनल की। उसको पता होना चाहिए कि मैंने सिक्योर वे में सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है, मैंने सिक्योर वे में सॉफ्टवेयर को डिजाइन कैसे करना है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तब जाकर मेरे फंक्शनैलिटी भी अचीव होगी, मेरी सिक्योरिटी भी अचीव होगी, और यूजर को उसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी अचीव होगी। इसमें एक ट्रायंगल होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे, आपको हमें बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो एक्यूरेट मिले, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। वरना तो इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। वेरीफाइबल होनी चाहिए। आप जिस तरह नादरा से अपना रिकॉर्ड वेरीफाई करवा सकते हैं, दे कैन बी क्रॉस चेक, दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी क्रॉस चेक, राइट? किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कराया जा सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली मिलनी चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ओटीपी एक टाइम के बाद मिले, तो आप तो अपनी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर ही नहीं पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आपको टाइम पे नहीं मिली, तो आपके काम का तो बाद में मैसेज नहीं रहा। ओटीपी बेशक बाद में मिल गया आपको, लेकिन उस वक्त काम का नहीं था, टाइमली नहीं मिली, राइट? ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, उसको उसको प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, तब जाकर हम उसको वैल्यूएबल कह सकते हैं। ठीक है, मैं अगर अगर इस प्रेजेंटेशन की जो मैं लास्ट बात है वो भी शुरू में कर दूं, और वेलकम वाला जो मैंने बात करनी है वो आखिर में करूं, तो वो इन्फॉर्मेशन तो ठीक होगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। ठीक है, एक्सेसिबल होनी चाहिए, मुझे जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे उस टाइम पे मिलनी चाहिए। अब जिस तरह शुरू में हमारा डिले आया, वो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी था, राइट? अवेलेबिलिटी था। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट में आगे हम डिस्कस करेंगे, अवेलेबिलिटी कैसे कंप्रोमाइज हुई होती है, साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आपको इस लैग की समझ आ जाएगी। यूजफुल होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उस पर उतना खर्च कर रहे हो जितनी उस इंफॉर्मेशन से आपको वापस फायदा भी होना है। ऐसा ना हो कि आपने लाखों की इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए अरबों लगा दी। ठीक है जी। सो कमिंग टुवर्ड्स द क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज पीपल। ठीक है, इट शुड बी रिमेन सीक्रेट, राइट? आपके फॉर एग्जांपल सीएनआईसी नंबर्स हैं, आपके पासपोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है, आपकी आपके पासवर्ड्स हैं, राइट? एनीथिंग दैट इज कॉन्फिडेंशियल टू यू, दैट मस्ट बी ओनली लिमिटेड टू यू ओनली। ठीक है, जिस और पेशेंट के हेल्थ के रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जितना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। द सेकंड थिंग इज इंटेग्रिटी। उसमें कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, राइट? उस इंफॉर्मेशन को फॉर एग्जांपल आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, या आप कोई भी रिकॉर्ड सेव करते हैं, और उसमें कोई बंदा बाद में उसको एक्सेस करके वैल्यूज चेंज कर दे। ठीक है, आपके बैलेंस फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन के बाद उसको मैं 10 कर दूं, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी इज कम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल रहना चाहिए 24/7 इंफॉर्मेशन को, जब जब मुझे चाहिए मैं उसको एक्सेस कर सकूं। ये तीन एलिमेंट्स है जो साइबर सिक्योरिटी के कोर एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, उसको हम CIA ट्राइड भी कहते हैं। ठीक है, इनमें इन तीनों में से अगर कोई एक भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपकी साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है, राइट? अगर देखें आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल तो है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, फायदा कोई नहीं। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही नहीं रही, अवेलेबल भी है, इंटेग्रिटी भी है, तो कॉन्फिडेंशियल ही नहीं, तो साइबर सिक्योरिटी भी नहीं रही। ठीक है, लेकिन बाजों का ऐसा भी होगा कि जब कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी तो डेफिनेटली हो सकता है साथ इंटेग्रिटी भी ब्रीच हो जाए। ठीक है, ये इट डिपेंड्स कि वो डाटा आपका कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो करता भी है कि नहीं। इससे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट मैं इसको बड़ा शॉर्टली एक एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक्स। वन इज मैन इज द मिडल अटैक। ठीक है, मैं
एक पर्सन ए पर्सन बी से अगर बात कर रहा है, उन दोनों की जो कम्युनिकेशन है दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, लेकिन बीच में कहीं बैठा हुआ एक बंदा उनकी बात को इंटरसेप्ट कर रहा है, सुन रहा है, तो उनकी बात कॉन्फिडेंशियल नहीं रही, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई। नाउ इन दिस सेम सिनेरियो अगर मैंने इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज करवाना तो कैसे होगा? आई एम द सेम मैन इन द मिडिल सिटिंग बिटवीन द टू पर्सन्स, टू पार्टीज, राइट? नाउ आई एम अगेन इंटरसेप्टिंग दैट ट्रैफिक, बट मैंने जो पर्सन ए से डाटा आ रहा है उसको मॉडिफाई पहले कैप्चर किया, मॉडिफाई करके मैंने पर्सन बी को भेजा। तो अब पर्सन बी को यही लगेगा कि पर्सन ए ने यही वाली इंफॉर्मेशन भेजी है जो मॉडिफाइड है, तो इंटेग्रिटी भी ब्रीच हो गई। अब फर्ज करें इन थर्ड सिनेरियो, अगर पर्सन ए एक डाटा भेज रहा है और एज अ मैन इन द मिडल, एज अ हैकर, मैं सिटिंग दरमियान में बैठा हूं और मैंने वो इंफॉर्मेशन अपने पास रोक ली है, तो अब वो पर्सन बी को अवेलेबल नहीं हो रही, तो अवेलेबिलिटी इज कॉम्प्रोमाइज, राइट? तो ये तीनों चीजें जब एक साथ हो या इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर सिक्योरिटी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, यूटिलिटी एंड पोजीशन, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सिस्टम होता क्या है, मैं बहुत ही क्विकली इन चीजों से स्किम थ्रू करूंगा जस्ट टू रियलाइज यू कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज माइनर टर्म्स, ठीक है, क्योंकि एट द एंड जब आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से सिक्योर करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बैकएंड पे ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं। तब जाकर आप जब भी किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे आपको आइडिया होगा कि दिस इज कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज नॉट जस्ट अ गेमिंग मशीन, ये कुछ भी कर सकता है आपकी जिंदगी में, ठीक है। इसके अंदर आपकी जिंदगी का डाटा मौजूद है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी हुई है, आपने अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसमें रखे हैं, पिक्चर्स रखी हैं, वीडियोस रखी हैं, तो उसको सिक्योर, उस पूरे लैपटॉप को सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब ये पता होगा तब आपको रियलाइज होगा कि नो, आई मस्ट इसको फिजिकली भी सिक्योर करना है, मुझे इसको इंटरनेट के जरिए भी सिक्योर रखना है हर जगह से। तो दैट्स व्हाई I just wanted to explain these terms in a very quick way. सिस्टम होता क्या है जी? एक ऐसी चीज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है, एक स्टेप्स बाय स्टेप काम कर रहा है और कुछ आखिर में उसने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। देर इज इनपुट, देर इज प्रोसेसिंग, देर इज आउटपुट एंड देर कैन बी स्टोरेज एज वेल फॉर लेटर यूज, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम की हम डेफिनेटली बात करते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर अगेन देखिए, जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन में बात करता हूँ तो 1 घंटा तो उससे भी गुजर सकता है बड़े आराम से, क्योंकि उसकी डेप्थ होती है, हर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इनपुट, हम इनपुट कौन कर रहा है, एक सिस्टम को इनपुट कौन कर रहा है, एक यूजर। यूजर कौन है, हम है। अगर मैं अवेयर नहीं हूं, मैं सिक्योर वे में उसको यूज नहीं करना जानता, मैं इनसिक्योर इनपुट दे रहा हूं, ठीक है, मेरी किसी ह्यूमन एरर से अगर कोई ऐसी कमांड चली गई सिस्टम के अंदर जो कि प्रोसेसिंग को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है, तो देयर कैन बी एनी इशू, चाहे वो ह्यूमन इशू है, ठीक है, चाहे वो सिस्टम के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है, तो इनपुट को भी सिक्योर रखना जरूरी है। देन प्रोसेसिंग, जहां पर आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो उस वो प्रोसेस क्लाउड पे हो रहा है, वो किन सर्वर से हो रहा है, क्या वो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन है कि नहीं, क्या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उस डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है कि नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आउटपुट, ठीक है, उसकी स्टोरेज, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो क्लाउड पर स्टोर हो रहा है, वो किन किन सर्वर्स पर स्टोर हो रहा है डाटा, किन पार्टीज के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टोरेज को भी सिक्योर रखना है। तो हर फेज में डाटा की सिक्योरिटी इज द ऑब्जेक्टिव, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे बनता है, देयर इज हार्डवेयर, देयर आर सॉफ्टवेयर एंड पीपल, तो इसको हम कहते हैं पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यूं मिसाल दे दूं कि अब जो आपके लैपटॉप हैं दैट इज योर हार्डवेयर, अब उस हार्डवेयर की सिक्योरिटी के ऊपर अगर मिसाल दूं तो वो फिजिकल सिक्योरिटी है। अगर आपका हार्डवेयर ही फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाए तो डाटा तो आपके पास वैसे ही नहीं रहा, ठीक है। आपने लैपटॉप ऑन किया हुआ है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि अपने जो आपके डिजिटल सिस्टम है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जहां बैठकर काम कर रहे हैं, चाहे वो लैब्स है चाहे वो घर है,
अपने लैपटॉप के आसपास कोई भी लिक्विड खाने पीने की चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लैपटॉप के ऊपर पानी गिर जाए, कोई पानी का जग भर के उस पर गिरा दे, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का फिजिकल डैमेज हो गया, ठीक है, अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हुई, फिजिकल डैमेज हुआ, ठीक है, और वो शायद दोबारा से रिपेयर भी ना हो सकता, वैसा भी हो सकता है, परमानेंट लॉस, ठीक है। तो हार्डवेयर की सिक्योरिटी, देन सॉफ्टवेयर। अब उसी हार्डवेयर के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। वो सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और एक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद आपके विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका आईओएस है, ठीक है, या लिनक्स है, जो भी ओएस आप यूज करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स होंगे। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज के अंदर डिफेंडर होगा, आप डिफेंडर यूज करते हैं, ठीक है, या कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो अपने ओएस की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ठीक है। और उसके डिफरेंट और एस्पेक्ट्स होते हैं। देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, वो सॉफ्टवेयर कितने सिक्योर वे में डेवलप हुए हैं, या वो किन सोर्सेज से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, ठीक है। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से अनट्रस्टेड सोर्स से वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल किया, तो वो भी वल्नरेबल हो सकता है, आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है, सर सॉरी ठीक है। फॉर डिस्टर्ब तो उन डिस्टर्ब सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू दिस मीटिंग विद एंड विद इन 1 minute, सो वी विल स्टार्ट सेम लिंक से हम ज्वाइन करेंगे सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। श्योर श्योर थैंक श्योर यू। श्योर श्योर, थैंक यू। थैंक यू।